Good morning students. Now we will discuss about the types of reproduction. In the last chapter we have discussed about the why reproduction is necessary. There are the two type of reproduction is known. One is known as asexual reproduction and second one is known as a sexual reproduction. Asexual reproduction means only single parent is required. Right? Only single parent is required. In the sexual reproduction both male and female parent are required. Right? Second, first we कह सकते हैं, दूसरा कह सकते हैं less energy required, more energy. Third, we can say that no variation occurs. In this, chances of variations. Right? Third, new individual is exact similar to parent one. इसमें क्या है? Not exact similar. Right? In asexual reproduction we can say that generally we can say that these are immortal in nature or these are your mortal in nature. This is the difference between the sexual reproduction and asexual reproduction. Now we will discuss about the types of asexual reproduction. Right? Types of asexual reproduction. There are generally 6 types of the reproductions are there, in which mostly unicellular कह सकते हैं या हम वो कह सकते हैं कि multicellular में भी हो सकता है, लेकिन only single parent is required in that case. That is known as your asexual reproduction. First we will discuss about the fission. Then we will discuss about the fragmentation. Third we will say that regeneration. Fourth one is known as your budding. Fifth one is known as your vegetative propagation. And sixth one is known as your spore formation. Right? So there are the 6 type of the sexual reproduction are there. First we have discussed about the fission करेंगे, फिर fragmentation के बारे में, फिर regeneration के बारे में, फिर budding के बारे में, फिर vegetative propagation के बारे में, और फिर हम discuss करेंगे spore formation के बारे में. Before discussing about these, there are some activities are given. एक्टिविटीज़ दी हुई है. एक्टिविटीज़ सिंपली आपको एक एक 2 लाइन के अंदर बता देते हैं. व्हाट आर द एक्टिविटीज़ गिवन, कि आपको यीस्ट दिया हुआ है और साथ में आपको थोड़ा सा शुगर लेना है और वार्म वाटर लेना है. राइट? आपको क्या क्या लेना है? शुगर. एक टेस्ट किस चीज में, ये इन अ टेस्ट ट्यूब. And after some time you will see that there will be a smell will be there and you will use on the microscope. इसकी सारी चीज़ों को मिक्स करके कुछ देर के लिए वार्म प्लेस पे रख दीजिए और उसके एक ड्रॉप लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे तो यू विल सी दैट देयर विल बी प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन कैन बी सीन वेरी इजली. दूसरा, जैसे हम ब्रेड है, ब्रेड की एक स्लाइस ले सकते हैं. जैसे हमारा रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में यू विल सी दैट द फंगस इज ऑन द ब्रेड and when you see this fungus on the bread and through the microscope you will see that there will be some living organism can be seen and which lives in the colonies, so that yeast grows very easily and fungus can grow very easily in the warm and the humid conditions there. So we can say that in these two activities the process of the reproduction takes place very fastly and they are immortal in the nature. means एक अपने आप को डिवाइड करके 2 में डिवाइड कर सकता है, 3 में डिवाइड कर सकता है और ये स्पीशीज जल्दी से मरती नहीं, यानी पेरेंट अपने आप को डिवाइड कर देता है, यानी इट मीन्स इट इज इमॉर्टल इन द नेचर. राइट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द वन बाय वन. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फिजन. फिजन जैसे पॉन्ड वाटर को हम देखें, पॉन्ड वाटर के अंदर आपको अमीबा मिलता है. दैट अमीबा इज यूनिसेलुलर इन द नेचर. अमीबा दैट इज योर यूनिसेलुलर इन नेचर. Right? And when you see through the microscope you will see that it is having the structure just like this.
you will see that the structure will be like this. Irregular structure will be there, no regular shape is there, and this is your amoeba. इसके अंदर मैंने ये आपका न्यूक्लियस बनाया है, इसके चारों तरफ यहाँ पे साइटोप्लाज्म बनाया. ऑल द एक्टिविटीज आर डन विद द सेल एंड इट विल ग्रो इन द साइड जस्ट लाइक दैट. इट विल ग्रो इन द साइड लाइक दिस. अपने आप को ग्रो करेगा. ग्रो करने के बाद फिर और ग्रो करेगा ऐसे करके, और लाइक दिस. एंड अ स्टेज विल बी रीच्ड व्हेन इट विल डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू द टू पार्ट्स. एक इसमें आपका छोटे से साइज का, एक इसमें छोटे से साइज का, अपने आप को ऐसे डिवाइड करेगा, और ये दोनों आपके न्यू इंडिविजुअल्स में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. ये किसमें चेंज हो जाएंगे, आपके न्यू इंडिविजुअल्स में चेंज हो जाएंगे. तो दिस टाइप ऑफ द डिवीजन इन विच सिंगल पेरेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. Single parent is divided into two parts and or two individuals. Then this is known as your binary fission. तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे. कब, जब एक इंडिविजुअल अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा. अनदर एग्जांपल वी कैन से दैट लिशमीनिया दैट कॉजेज अ डिजीज एंड दैट डिजीज इज नोन एज योर काला अजर. राइट, दैट काला अजर लिशमीनिया ऑल्सो डिवाइड्स बाय द बाइनरी fission. Sometimes yeast also shows binary fission. Right? तो ये क्या है, बाइनरी फिजन को शो करता है. देयर इज ऑल्सो मल्टीपल फिजन इज देयर. मल्टी मीन्स आपका, जैसे मैं आपका सिंपली एक ये स्ट्रक्चर बनाऊं लाइक दिस. I am just going to draw like this, and there are the small like this. मैं इसमें पूरे में ड्रॉ कर दूँ ऐसे. A number of these small structures are present in this. They will be smaller in the size and present in the human body, and the example is your plasmodium, which causes the malaria in the human being. And this outer covering is known as your cyst. जब ये fully grow कर जाएंगे आपके, क्या ये आपके fully grow कर जाएंगे, it will ruptures and they will come out just like this. Like this, they will come out like this and spread into your blood. और कहाँ फैल जाएंगे आपके, spread into blood. Right? ब्लड में फैल जाए, यानी एक से इतने सारे बनना. दिस इज नोन एज योर मल्टीपल फिजन. राइट, तो दिस इज अबाउट योर मल्टीपल फिजन. यानी फिजन में आपके दो टाइप बताई हमने. वन इज नोन एज योर बाइनरी फिजन एंड अनदर इज नोन एज योर मल्टीपल फिजन. अंडरस्टैंड? Yes students, now we will discuss the next, that is known as your fragmentation. You have seen about the algae. That algae spread itself on stagnant water very rapidly. Right? तो अपने चारों रैपिडली कर लेता है दिस बाय द प्रोसेस ऑफ द फ्रेगमेंटेशन. इन दिस इफ आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम लाइक दिस, like this. This is your Spirogyra. Right? If I will divide like this in 2 or 3 parts, they will divide into 2 or 3 parts. तो जैसे उन्होंने अपने आप को एक पार्ट्स ऐसे, एक पार्ट ऐसे और एक पार्ट ऐसे अपना क्या किया, डिवाइड किया लाइक दिस. और ये 3 है, ये अपने अपने तीनों दोबारा से एक पूरे के पूरे आपके इंडिविजुअल में चेंज हो जाएंगे लाइक दिस, पूरे के पूरे. like this.
and this will be done in the unicellular organism. This fragmentation is done in the unicellular organisms, not in multicellular. Why? अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों नहीं होती? इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स. Specialized cells means they are having the special function because the cells combines together to form the tissue. टिश्यू से आपके क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से आपके क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं. और ऑल ऑर्गन सिस्टम आर हैविंग द देयर स्पेसिफिक फंक्शन. तो इट मीन्स सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड इन नेचर, एंड ड्यू टू दिस स्पेशलाइज्ड नेचर each cell perform its specific function. And in the fragmentation there is, fragmentation में क्या है आपकी? Cell to cell division is there, which is not possible or impractical in multicellular organism. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आपकी इम्प्रैक्टिकल है. क्यों इम्प्रैक्टिकल है? क्योंकि स्पेशलाइज सेल्स है, सबका अपना पर्टिकुलर फंक्शन है, और ट्रिलियंस ऑफ, जो जैसे मैं एक ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो ह्यूमन बीइंग में ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स प्रेजेंट है, और हर सेल की सेल टू सेल डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. सो इट विल नॉट अकर इन द केस ऑफ योर सिंपली वी कैन से दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हर की अपनी एक पोजीशन फिक्स की गई है, और इसी फिक्स पोजीशन की वजह से रिप्रोडक्शन इज दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. राइट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रीजनरेशन. दिस रीजनरेशन also occurs in the multicellular, also occurs in multicellular. मल्टीसेलुलर में जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लिजर्ड का एग्जांपल दूं, तो इसकी रीजनरेट हो जाते हैं, जो टेल है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, यानी कुछ ऑर्गन. मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, ह्यूमन बीइंग के अंदर इफ आई एम डोनेटिंग माई सम लीवर टू द अनदर वन, देन द लीवर विल बी रीजनरेटेड. लीवर वहां पे क्या हो जाता है? दोबारा से थोड़ा जो पार्ट है वो दोबारा से रीजनरेट होता है. तो इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सम पार्ट्स आर रीजनरेटेड, नॉट द होल बॉडी, कि मेरा कोई पार्ट है वो कट जाए, उसकी जगह दोबारा से पार्ट आ जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इट इज ओनली द सम ऑर्गन्स आर और सम पार्ट्स कैन बी रीजनरेटेड इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बट इन देयर इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. द एग्जांपल इज योर प्लेनेरिया. In the planaria, if I am just going to draw the structure just like this, it is just like this. Like this. Okay. If I will cut this into the three parts, just like right, I cut these three parts, and each part will be able to regenerate itself into a new individual. छोटे छोटे बनेंगे पहले आपके, like this, like this. Eyes up, you can make the eyes. Like this, and they will be fully grown. They can be fully grown into a new individual. मैं यहाँ 3 लिख देती हूँ कि यानी तीनों के तीनों आपके एक न्यू इंडिविजुअल में आपके पूरे के पूरे ग्रो कर जाएंगे, जस्ट लाइक दिस. ओके, लाइक दिस. तो व्हाट डज इट मीन्स कि एक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तीनों ने पहले अपना थोड़ा थोड़ा ग्रो किया और उसके बाद फुल्ली ग्रो कर गया. एंड दैट टाइप ऑफ द रीजनरेशन इज डेवलप इन द प्लेनेरिया, दैट इज योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. राइट. रीजनरेशन इज नॉट सेम एज द रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मली उसको कट के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन बीइंग कट अप टू एबल टू रिप्रोड्यूस, कि कहाँ से हमने कट किया है तो ये रिप्रोड्यूस करेगा. यदि प्रॉपरली कट नहीं होगा तो इट विल नॉट रिप्रोड्यूस. ओके. नेक्स्ट वन इज नोन एज योर बडिंग. This budding, giving example is your hydra and yeast. इसे हम 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाइड्रा और यीस्ट के एग्जाम्पल दे सकते हैं. अब जैसे हाइड्रा में आपको एक सिंपल से स्ट्रक्चर बनाऊं लाइक दिस.
like this. अब मैं simply कहूँ this is your hydra, plant like animal is there and there will be an outgrowth is there. यहाँ पे एक छोटी सी outgrowth होगी. This outgrowth is known as your bud. इस outgrowth को मैं क्या बोलूँगी? bud बोलूँगी. और ये इसके बाद जैसे इसको रीजनरेट अपना साइज में ग्रो करेगा just like this. And it will be just like a small like this. ये साइज में ग्रो किया. अब ये फिर से साइज में ग्रो करेगा. Simply we can say that you can make any lenticles like this. Like this, and it will also increase in size like this. And when it will grow in the size, it will be detached and changes into a new individual, and that process is known as your budding. ओके, रिपीटेड सेल डिवीजन होती रहेगी. जब रिपीटेड सेल डिवीजन होगी तो आपका यीस्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा बर्ड, और दैट विल बी डिटैच फ्रॉम दैट एंड इट विल बी ग्रोन. इसी तरह से जैसे यीस्ट है, मान लो मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल दूँ. ये आपका सिंपली मैं कहूँ यीस्ट है. इसमें यीस्ट के ऊपर आपकी अ चेन ऑफ द बर्ड्स कैन बी सीन. This is known as chain of bud, and this chain of bud will be detached and they will be separated and form a new individual, and they can be grown again and again, and repeated cell division will be there and they will be changed into a new individual. Okay students, bye students.